our Chairman, Sir Vikas Sukar, Trustee Members, College Principal Mrs. Pallavi Patil, Head of English Department Madam Samira Merchant, Head of IBG Madam Kiran Agarwal, Supervisors, Teaching and Non-Teaching Staff for the celebration of 73rd Republic Day. I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January every year to mark the day on which our Constitution came into effect in 1950. After this day, our country truly became democratic and independent. Now, I request Vishnu Mama to please come upon and do the honor of flag hosting. Sir Ram Sir is requested to please call Vishnu Mama. Stage.
joyous morning of 26 January, where we have gathered to celebrate this gratifying occasion of 74th Republic Day. This day holds a special significance in the history of India, as it marks the 73rd year since when our country became a republic and our constitution was adopted. The word republic stands for sovereignty. So, as a sovereign citizen of this country, I would like to use this opportunity to pass on a special message. These pandemic times have thrown up a lot of challenges for all of us. The sudden opening of schools and even more unexpected closure puts us in a state of perplexity. The challenges of online classes, use of technology, increasingly advanced technology, adds to all our troubles. But whatever the challenges may come, we teachers are always ready for action. As we all are aware by now, the future of education is hybrid and student-centric. So as teachers of New India, on this Republic Day, let us take a pledge to learn, unlearn and relearn and face this challenge head-on so that we are able to create a better India for our upcoming generation. Thank you. Thank you, Ms. Amrin, for these motivational words. Now, I request my guest, Madam, Sir, all the trustee members to please go upon the first row to view the performance. कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशा हरा क्या मुनबोका मोन्टारे। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशा हरा क्या मुनबोका मोन्टारे। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে।
जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। तिरंगे की शान का है। माननीय मुख्याध्यापिका महोदय, अतिथिगण, अभिभावक, सुपरवाइजर्स और मेरे सारे शिक्षक साथियों को आज गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस स्वर्ण दिन आपने मुझे इस मंच पर उपस्थित रहकर 2 शब्द कहने का जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी की आभारी हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 200 वर्षों की लंबी गुलामी के बाद हमें ये आजादी मिली है। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, लेकिन हमें ये जो आजादी मिली है वो आसानी से नहीं मिली। इसके लिए लाखों शहीदों ने अपने शीश कटाए, लाखों माओं की गोदें खाली हो गई, हजारों सुहागनों के सुहाग लुट गए। उन आंसू वाली आंखों से सातों समंदर हारे होंगे। उन आंसू वाली आंखों से सातों समंदर हारे होंगे जब मेहंदी वाली हाथों ने खुद अपने हाथों से मंगलसूत्र उतारे होंगे, खुद अपने हाथों से मंगलसूत्र उतारे होंगे। ये आजादी हमें जो मिली है वो आसानी से नहीं मिली साथियों। इसके लिए बहुत सी कुर्बानियां गई है, हमें उसका मोल करना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब हम स्वतंत्र तो हुए, लेकिन स्वचालित न हो सके। हमें स्वचालित होने के लिए आवश्यकता थी एक संविधान की। तो इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में और 6 अध्यक्ष के उपलक्ष्य में एक संविधान समिति की नियुक्ति की गई। उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन अथक परिश्रम करके एक संविधान की निर्मित की। वो संविधान 26 जनवरी 1949 को निर्मित हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते हैं। गणतंत्र मतलब क्या? गणतंत्र मतलब लोगों का राज्य, लोकशाही राज्य। लोगों को अपना
है ये शब्द गणतंत्र। लेकिन क्या आप जानते हैं इस 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिन क्यों मनाते हैं? जी हाँ मित्रों, इसके पीछे भी एक रोचक इतिहास छुपा हुआ है। 26 जनवरी 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने तब यह कहा था कि अगर अंग्रेज हमें 26 नवंबर 1930 तक डोमिनियन पावर नहीं देती तो हम स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर देंगे। अंग्रेजों ने डोमिनियन पावर नहीं दी, इसलिए उन्होंने स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जब तक हम आजाद नहीं हुए दोस्तों, तब तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा, यूं ही झंडा लहराता रहा, यूं ही हम स्वतंत्र हैं, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, इस तरह से नारे लगते गए। और आखिरकार वो दिन आ गया, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। हमें अपने आप को एक सवाल पूछना चाहिए, हम आजाद हुए, आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं, जहाँ चाहिए वहाँ जा रहे हैं, जो चाहिए वो खा रहे हैं, जैसे चाहिए वैसे कपड़े पहन रहे हैं, सब हमें मिल रहा है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सी कुर्बानियां दी है दोस्तों, ये यूं ही नहीं मिला। क्या हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं? यहाँ पर बैठे हर एक को खुद को ये सवाल पूछना चाहिए कि यहाँ हम लोग इस आजादी का सदुपयोग कर रहे हैं। आज हमारे देश को भ्रष्टाचार, अशिक्षा, जातीयता, सांप्रदायिकता जैसे कूटनीतियों ने जकड़ा हुआ है। अगर हम ये सब छोड़कर, आपसी बैर भुलाकर एक साथ मिलकर अगर रहते हैं, अगर हमारे समाज को लगी इस भ्रष्टाचार की दीमक को हम अगर हटाते हैं, तो वही सही मायने में हमारे उन शहीद साथियों को श्रद्धांजलि होगी। जाते जाते मित्रों, मैं बस इतना कहूंगी, सच हुआ तभी देश आजाद हुआ। आज सलाम करें उन शहीद भाइयों को जिसकी वजह से यह गणतंत्र दिवस आया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
या देशाचे आम्ही नागरिक, या देशाचे आम्ही नागरिक घडवू आपल्या भारत देशात सर्व धर्म समभाव नांदतो या आपल्या भारत देशात. खरोखरच आपला भारत देश एक रत्नाची खाण आहे. जगातील सर्वोत्तम होऊन हरनाथ सिंधूने देखील आपल्या देशाचे नाव 7 समुद्रात पार नेले. आज आपला देश प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती करत आहे. उद्योगधंदे, व्यापार, क्रीडा प्रत्येक क्षेत्रात. पण आज खरी गरज आहे ती प्रत्येक भारतीय नागरिकाने त्याचे कर्तव्य चोखपणे पार पाडण्याची. मी देशाचा आणि देश माझा असे समजून सगळ्यांनी एकत्र येऊन देशाच्या प्रगतीसाठी हातभार लावायला हवा. शेवटी मी एवढं सांगेन की प्रगतीच्या या नव्या युगात कीर्ती गाजेल नभात. मग आपण सगळे एक होऊन म्हणूया भारत देश महान, भारत देश महान. धन्यवाद. मेरा देश है. क्या इस तरह खुले में कचरा फेंकना उचित है? नहीं, नहीं, नहीं। अरे वो देखो, अरे वो देखो, देखो। सभी भारतीय मेरे भाई और बहन हैं। देखे नहीं जा सकता हो क्या? क्या इस तरह असावधानी से वाहन चलाना उचित है? अरे वो देखो, अरे वो देखो, मुझे मेरे देश से प्यार है. क्या इस तरह खुले में थूकना उचित है? अरे वो देखो, अरे वो देखो, देखो। अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से भरे परंपराओं पर मुझे गर्व है और मैं प्रयत्न करूंगी कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो. अस्सलाम वालेकुम. नमस्कार. अरे क्या इस तरह से एक दूसरे को नजरअंदाज करना सही है? नहीं। अरे वो देखो, अरे वो देखो, देखो। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूंगी और हरेक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूंगी. अरे कोई मदद कर दो अंधे की. अंधे की मदद करूं मैं? अरे लोग हैं, मदद भी नहीं करते. क्या इस तरह एक दूसरे की मदद ना करना उचित है? नहीं। देखा आपने, हम भारत देश में कितने कामयाब लोग हैं. जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम वासी हैं. हमारे देश को हम ही गंदगी के जाल में फंसा रहे हैं. लेकिन
इस स्थिति को सुधारने का मौका सभी को मिलता है और सभी को मौका मिलना ही चाहिए। यह हमारी जंग है, हमारे देश का नाम ऊंचा करने की जंग है और इस जंग में हमें कामयाब होना है, हमें कामयाब होना है। भारत मेरा देश है। हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। अच्छा है। सभी भारतीय मेरे भाई और बहन हैं। आइए मैं आपको वहां तक छोड़ दूं। हमें इसी तरह सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। अच्छा है। अरे वो देखो, अरे वो देखो। मुझे मेरे देश से प्यार है। हमें खुले में थूकना नहीं चाहिए, ना हम थूकेंगे ना किसी को थूकने देंगे। अच्छा है। अरे वो देखो, अरे वो देखो, देखो देखो देखो। अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से भरे परंपराओं पर मुझे गर्व है और मैं प्रयत्न करूंगी कि उन परंपराओं की सफल अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमस्कार। नमस्कार। हमें इसी तरह आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अच्छा है। अरे वो देखो, अरे वो देखो, देखो देखो देखो। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूंगी और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूंगी। अरे कोई मदद कर दो हमने की। आइए मैं आपकी सहायता करती हूँ। धन्यवाद। हमें इसी तरह से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अच्छा है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा रखेंगे। उनकी भलाई और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद।
staff members. A very, very happy Republic Day to you. I don't think you require motivation. In fact, I've learned so many things from you today. How well you were so cooperative with each other, and you all were all together in one spirit, heart, and you all showed your skills. Beautiful skills what you all have learned throughout this journey of yours in Scholars High School.
Maybe of course you have come from other schools also and you have brought your skills from there also. But putting it and showing it and displaying it requires another guts, which are made on the stage. So I am so proud to have such wonderful, confident teachers and who are ready to pour out everything without being shy or without having any kind of apprehensions that yes, I wanted to do it and I did it. I like the way you are dressed up so well. I like the way the elder teachers also did a legend. I like the other teachers who could not maybe dance and all the skit. I liked also the speech by Yeshodhara, who also gave us so much of knowledge today about what was Republic Day supposed to be. Yeshodhara did a very good job. In fact, she educated us a little more which we had learned in school. So she gave us a clear picture of what is Republic Day. And I hope we keep that spirit of Republic Day in our minds and in our hearts and always remain united as Scholarites, as a family. Thank you so much for making our